आज हम 12th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशंस, इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशंस, solution of triangle, there are the various types: polar coordinate, relation between the polar coordinate and Cartesian coordinate, solving a triangle, sine rule, cosine rule, projection rule, application of sine rule, the cosine rule and projection rule, inverse trigonometric functions. First, I tell the definition of a trigonometric equation. An equation involving the trigonometric functions or the functions is called the trigonometric equations. जो इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंक्लूडेड है उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलने वाले हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, tan theta is equal to 2, cos 3 theta is equal to cos 5 theta are all trigonometric equations. X is equal to a sin omega t plus alpha is also a trigonometric equation. Then solution of trigonometric equation, हमें क्या करना है, solution find out करना है trigonometric equation का. A value of variable in a trigonometric equation which satisfies the equation is called the solution of trigonometric equation. Then हमें find out करना है principal solution. A solution alpha of trigonometric equation is called the a principal solution. 0 is less than or equal to alpha is less than or equal to 2 pi. हमें जो trigonometric equation का solution find out करना है वो lies होना चाहिए 0 to 360 degree. 2 pi means 360 degree. जो हम solution find out करेंगे that solution lies between, principal solution किसको बोलते हैं, if the solution lies between 0 to 360 degree or 0 to 2 pi, means the alpha lies between 0 to 2 pi, then that type of the solution is said to be a principal solution. हाँ, अभी एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। पहले फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, लेकिन वो फाइंड आउट करने के लिए पहले हम ये थोड़ी जानकारी लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो you know the pi is a radian and 180 degree is a degree, means this is a relation between the degree and radian. Pi radian is equal to 180 degree, pi by 2 is equal to 90 degree, pi by 4 is equal to 45 degree, pi by 3 is equal to 60 degree, pi by 6 is equal to 30 degree. ये वैल्यूज सबको पता है। sin pi by 6 and cos 30, pi by 6 means sin 30, sin 30 and cos 60 is equal to 1/2, sin 60 and cos 30 is equal to root 3/2, sin 45 and cos 45, the answer is 1/√2. You know this value. Also, tan of 45 degree means tan of a pi by 4, tan of pi by 4 is 1, tan of pi by 4 is equal to 1. Tan 60 means tan pi by 3. Tan pi by 3 is equal to tan 60 is root 3 and tan pi by 6 is equal to 1/√3. ये हमें प्रॉब्लम सॉल्व करते समय अभी लगने वाले हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के अभी दो कंसेप्ट है। फर्स्ट कंसेप्ट है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो राइट हैंड साइड में पॉजिटिव रहेगा, नहीं तो राइट हैंड साइड में नेगेटिव रहेगा। अगर राइट हैंड साइड में पॉजिटिव रहता है तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, इफ द साइन ऑफ एक्स अगर है साइन ऑफ एक्स, देन फार्मूला हमें लिखना है साइन 180 माइनस थीटा, मीन्स पॉजिटिव है तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई माइनस एक्स। कॉस ऑफ एक्स अगर रहता है, कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 पाई माइनस एक्स। इसे हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बिकॉज साइन थीटा, दिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज आल्सो पॉजिटिव, कॉस
x and cos fourth quadrant, cos is also positive, means cos of x is equal to cos of 2 pi minus x. Tan of x is equal to tan of pi plus x. मीन्स अगर प्रॉब्लम सॉल्व करते समय अगर राइट हैंड साइड में पॉजिटिव रहता है तो ये हमें फार्मूला अप्लाई करना है। अगर राइट हैंड साइड में नेगेटिव है तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है? राइट हैंड साइड में नेगेटिव है तो माइनस साइन एक्स। तो इन विच क्वाड्रेंट साइन एक्स इज नेगेटिव? साइन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, साइन पाई प्लस एक्स। also sin negative minus sin x is equal to sin of 2 pi minus x। तो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है। अगर cos ऑफ x आता है माइनस cos ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ पाई माइनस x, मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है और थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है। अगर tan ऑफ x आता है देन माइनस tan ऑफ x इज इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस x माइनस tan ऑफ x। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव है। मीन्स नेगेटिव है तो हमें ये फार्मूलीज अप्लाई करने हैं फॉर फाइंडिंग द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अगर पॉजिटिव है तो ये फार्मूलीज अप्लाई करना है फॉर फाइंडिंग द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे अभी हम एग्जांपल में बताएंगे। तो अभी हम फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। उसमें से फर्स्ट प्रॉब्लम एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम है cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो पहले क्या करना है, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 का आंसर क्या है वो लिखना है हमें। 1/2 का आंसर क्या है देखो, cos π/3। cos π/3 तो cos थीटा इज इक्वल टू cos π/3। तो मुझे एक सॉल्यूशन मिल गया, थीटा का इज इक्वल टू π/3। दिस इज अ फर्स्ट सॉल्यूशन। बट इन केस ऑफ 0 to 360 डिग्री वी गेट द टू सॉल्यूशन। तो सेकंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए cos थीटा इज इक्वल टू, ये फार्मूला मैंने बताया है, cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 2 पाई माइनस एक्स। राइट हैंड साइड में पॉजिटिव है तो ये तीन हमें फार्मूलीज अप्लाई करने हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 2 पाई माइनस एक्स लिखना है, cos 2 पाई माइनस एक्स। cos ऑफ 2 पाई में से वो जो एंगल है वो माइनस करना है। यहाँ पे थीटा है तो x जो भी है वो लिख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा। अगर थीटा वेरिएबल है तो थीटा लिखना है, x वेरिएबल है तो x लिखना है। तो 2 पाई माइनस π/3। तो ये सिंप्लीफाई करना है, 3 2 जा 6, 6 माइनस पाई मीन्स cos ऑफ 5 π/3। तो थीटा का आंसर कितना मिलता है हमें, थीटा इज इक्वल टू 5 π/3। मीन्स इन 0 to 360 degree we get the two solutions। The required principal solutions are required principal solution π/3 and 5 π/3। तो ये दो सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे। अभी सेकंड प्रॉब्लम करेंगे। ये प्रॉब्लम फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो पहले क्या करना है, 1/2 का आंसर लिखना है। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है cos π/3 इज 1/2। तो 1/2 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, cos π/3। तो मुझे एक सॉल्यूशन मिल गया, थीटा इज इक्वल टू π/3।
यहाँ पे दोनों साइड में कॉस है तो थीटा इक्वल दिखाना है, थीटा इज इक्वल टू π/3। अभी मुझे सेकंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो जो पॉजिटिव अगर राइट हैंड साइड में पॉजिटिव है तो ये तीनों फार्मूलेज अप्लाई करने हैं। cos x इज इक्वल टू cos 2π माइनस एक्स, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा cos 2π माइनस थीटा, 2π माइनस π/3, सिंप्लीफाई करना है cos ऑफ 5π/3, तो मुझे सेकंड सॉल्यूशन मिल गया 5π/3। ये जो दोनों सॉल्यूशंस है वो दोनों सॉल्यूशन लाइज बिटवीन 0 to 360 डिग्री होने चाहिए। ये दोनों सॉल्यूशन 0 to 360 डिग्री है। अभी सेकंड प्रॉब्लम क्या है, सेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3। यहाँ पे पहले क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, cos का, तो cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ √3/2, ये किसका cos का आंसर है, cos ऑफ π/6। cos 30 का जो वैल्यू है वो √3/2 है, तो मुझे पहला सॉल्यूशन मिल गया थीटा इज इक्वल टू π/6, ये फर्स्ट सॉल्यूशन है। अभी सेकंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सेकंड सॉल्यूशन के लिए जो मैंने अभी फार्मूला बताया है वो फार्मूला लिखना है, cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 2π माइनस थीटा, मीन्स जो एंगल है वो 2π में से माइनस करना है, 2π माइनस π/6, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2π माइनस π/6, cos ऑफ 6 to the 12, 12 माइनस 1 इज 11 π/6। जो भी आंसर है वो 360 के अंदर होना चाहिए, चेक करना है। पाई के जगह 180 है, 180/6 मीन्स 30 degree, 11 3 are 330, means this angle lies between 0 to 360 degree, means it is a solution. Theta is equal to 11 π/6, theta is equal to 11 π/6, 11 यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 11 π/6। तो ये दो सॉल्यूशंस हमें मिल गए। प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो टू प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है वो ये कंसेप्ट पे डिपेंड है, और जो सेकंड सॉल्यूशन है वो ये कंसेप्ट पे डिपेंड है। तो cos थीटा इज इक्वल टू, सेकंड प्रॉब्लम सेक थीटा, पहले क्या करना है, cos थीटा उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। हाँ, तो √3/2 का आंसर क्या है, cos π/6, तो थीटा का आंसर कितना मिलेगा, π/6। cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 2π माइनस थीटा, तो यहाँ पे थीटा कितना है, π/6, तो 2π में से π/6 माइनस करना है, cos ऑफ 11 π/6, तो मुझे सेकंड सॉल्यूशन मिल गया, थीटा इज इक्वल टू 11 π/6। अभी हम थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। cot थीटा इक्वल टू √3, cot थीटा इक्वल टू √3, तो मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/√3। cot थीटा किसका रेसिप्रोकल है, tan का रेसिप्रोकल है, तो इसका भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। √3 का रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, 1/√3। tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, 1/√3 ये किसका आंसर है, tan ऑफ 30, tan 30 मीन्स π/6। तो पहला सॉल्यूशन मुझे मिल गया, थीटा इज इक्वल टू π/6, ये फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया। तो सेकंड सॉल्यूशन अभी फाइंड आउट करना है। सेकंड सॉल्यूशन के लिए मैंने फार्मूला बताया है। सेकंड सॉल्यूशन के लिए फार्मूला है tan ऑफ x इज इक्वल टू tan पाई प्लस एक्स, tan ऑफ x इज इक्वल टू tan पाई प्लस एक्स। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई प्लस थीटा करना है, tan ऑफ पाई प्लस π/6, tan ऑफ पाई प्लस π/6 मीन्स आंसर कितना आ जाएगा, tan ऑफ 7 π/6, tan ऑफ 7 π/6। तो सेकंड सॉल्यूशन मिल गया मुझे, tan ऑफ theta is equal to 7 π/6। These two solution must lies between 0 to 360 degree, 0 to 360 degree। cot theta is equal to 0। Fourth problem, cot theta is equal to 0। cot theta
इज इक्वल टू 0 है, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? नॉट डिफाइंड मीन्स इन्फिनिटी। ऐसे भी लिख सकते हैं tan थीटा इज नॉट डिफाइंड। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan of which value is not defined? Tan of pi by 2 is not defined. तो tan theta is equal to tan of pi by 2. तो फर्स्ट सॉल्यूशन मुझे मिल गया, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। सेकंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन मुझे फाइंड आउट करना है, तो फार्मूला क्या है? tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ पाई प्लस थीटा। तो सेकंड सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? पाई प्लस थीटा की जगह पाई बाई 2 सब्स्टिट्यूट करना है, तो पाई प्लस पाई बाई 2, पाई प्लस पाई बाई 2, ये आंसर कितना आ जाएगा? tan ऑफ 3 पाई बाई 2। तो सेकंड सॉल्यूशन हमें मिल गया, थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2। जो मैंने पॉजिटिव के फार्मूलेज दिए हैं वो फार्मूलेज अप्लाई करके ये सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं।